Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing well. Today, we will discuss the first unit of your 11th botany, that is diversity of life. Two chapters we will be discussing today: the living world and biological classification. But the list of only important questions which could be asked in your upcoming board examination will be discussed. So let's get started. First question consists of three terms. You may be asked to define these terms in your examination. Term 1 is biodiversity, then taxonomy, and then systematics. First we will study about these terms. First term is biodiversity. Okay, this biodiversity is a short version of biological diversity. And this term, biological diversity or biodiversity, was given by Walter Rosen way back in 1985. But later this term was popularized by a sociobiologist, Edward Wilson, who is otherwise called as father of biodiversity. मैंने क्या बोला? यहाँ लिखता हूँ मैं पहले. Biodiversity is a short form of biological diversity. Term coined by Walter Rosen way back in 1985, and this term biodiversity was later popularized by sociobiologist Edward Wilson. This Edward Wilson is otherwise called also called father of biodiversity. Okay, term biodiversity is a short form of biological diversity. This term was given by scientist Walter Rosen, but popularized by Edward Wilson, who is otherwise called as father of biodiversity. What is this biodiversity actually? Bio means living, life, and diversity means various forms, different forms. We can simply put this biodiversity as the diversity of life on the planet Earth, or the sum total of all the living organisms on planet Earth. Biodiversity is simply the sum total of all living organisms on planet Earth. Sum total of all the living organisms on planet Earth is what we call as biodiversity. UNO, which is the largest international organization in the world, headquartered at New York City of US, United Nations Organization, they declared 2010 year
as International Year of Biodiversity. UNO declared 2010 year as International Year of Biodiversity. Likewise, 2011 year was declared as International Year of Chemistry, by the way. Anyway, and every year in the world, May 22, May 22 is celebrated every year as World Biodiversity Day or International Day of Biodiversity, otherwise World Biodiversity Day. वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. ओके, आगे बढ़ेंगे. बायोडाइवर्सिटी में इतना पढ़ेंगे, इतना काफ़ी है. कितने स्पीशीज डिस्कवर्ड है, कितने अनडिस्कवर्ड है, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे. वो आपको 12th में एक सेपरेट चैप्टर है इकोलॉजी के अंदर, दैट्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. यहाँ पे सिंपली हम टर्म देख रहे थे, बायोडाइवर्सिटी है क्या. सिंपली आप याद रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन प्लैनेट अर्थ. दैट इज इट, व्हाट वी कॉल एज बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड टर्म हमारी जो थी, दैट वाज टेक्सोनॉमी. सेकेंड टर्म इज taxonomy. Term taxonomy is actually combination of two terms. It's actually derived from taxis and nomos. Taxis means arrangement. Taxis means arrangement, and nomos means law or rule. In simple terms, taxonomy can be defined as the arrangement of something by following certain rules or laws. But we are discussing diversity of life, we are discussing bioscience or life science. Here, the object that is arranged is the living organism. That means taxonomy is simply the arrangement of living organisms by following certain rules or laws as per some sequence actually. So this term taxonomy was coined by, it was actually given by साइंटिस्ट का नाम है A.P. de Candolle. Term taxonomy was coined by A.P. de Candolle. Okay, what is this taxonomy now? Taxonomy is simply the arrangement of living organisms. The arrangement of living organisms by or as per certain rules, simply as per certain rules or laws. This is simple definition of taxonomy. But in a broader sense, we can define taxonomy as, in broader sense we can define it, taxonomy is the study of, taxonomy में हम क्या क्या पढ़ते हैं? Actually 4 चीजें हम पढ़ते हैं taxonomy में. Taxonomy is the study of characterization, what we call otherwise as description. Study of characterization or description, identification, nomenclature, and
classification. In simple terms, you can define taxonomy as the arrangement of living organisms on the basis of certain laws or certain rules. But broader definition can be, or we say complex definition can be, taxonomy is a study of characterization or description, identification, nomenclature and classification. What do you mean by these terms actually? थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज हमने टर्म टेक्सोनॉमी डिफाइन करने हैं, में डिटेल में नहीं जाना है. कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन विच इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप है फिर आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी, व्हाट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन डिस्क्रिप्शन, मीन्स लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स. एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स का लिस्ट बनाना. जैसे आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको इसके कैरेक्टर्स देखना, जैसे इसमें सेल वॉल है, नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है, नहीं है, ये लोकोमोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किस फॉर्म में फूड खा रहा है, या इवन ये ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है. मीन्स लिस्ट करना कैरेक्टर्स, लिस्ट बनाना कैरेक्टर्स का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो पर्टेन कर रहे. मेकिंग लिस्ट ऑफ characters of an organism is what we call a characterization or description. Then in the second step, this list of characters is compared with another organism, and when this list is compared with another organism, if these characters are matching with that organism, with the already known one, then this organism can either be said it is a organism that is already existing in the world, or it is a different organism, new organism. Then if it is a new organism, it can now be named. इसको इसके बाद नाम दिया जाएगा. Nomenclature means the system, the process of applying a name to an organism, what we call as nomenclature. And after the organism is first, it is described first, it is characterized, means list of characters is prepared. Then it is identified by comparing this list of characters to an organism which is already discovered. Then the organism is named. It can be scientific name, whatever name. So naming organism is what we call as nomenclature, जो हम आगे भी देखेंगे. And then finally the organism is classified, means it is grouped into a some category, or it is basically classified into a some category. So classification भी हम देखेंगे आगे, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लास, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. Simply you can now remember taxonomy is the study of characterization or description, identification, nomenclature and classification. What is the first step of taxonomy? It is characterization or description. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम बोलते हैं साइंटिस्ट को, उसका नाम है कैरोलोस लीनियस. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, he was a Swedish naturalist, a taxonomist, स्वीडन का रहने वाला, यूरोपियन कंट्री है. Carolus Linnaeus is father of taxonomy. Father of taxonomy. Carolus Linnaeus is father of taxonomy. हो गए दो टर्म्स कंप्लीट. Number one was biodiversity, second is what we call taxonomy. Third term हमारी क्या थी? शाबाश. A third term was systematics. Systematics. Term systematics was coined by Carolus Linnaeus. अभी जो मैंने दिखाया था, father of taxonomy. Term systematics is derived from Latin term or Latin word systema. Systema. किसने दी थी ये टर्म? By C. Linnaeus, Carolus Linnaeus. Term systematics is derived from Latin term or Latin word systema by Carolus. This systema means systematic arrangement of organisms otherwise, which means systematic arrangement of living organisms.
वो क्या मतलब होगा अभी समझाता हूं. Term systematics was given by Carlos Linnaeus, from which is actually derived from Latin term systema, which means systematic arrangement of living organisms. अब सिंपली आप याद रखें systematics क्या है, बड़ा सिंपल है, इजी है. Systematics is simply taxonomy plus phylogeny. Taxonomy along with phylogeny is what we call systematics. मीन्स टैक्सोनॉमी में हम 3 बल्कि 4 चीजें पढ़ते हैं. कैरेक्टराइजेशन अभी जो पढ़ाया था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. इसके बाद ऐड करो फाइलोजेनी. मीन्स सिंपल यू कैन से स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन अलोंग विद फाइलोजेनी is known as systematics. Simply मैंने अब लिखा उन 4 चीजों के बदले taxonomy along with phylogeny is known as systematics. अब आप बोलेंगे phylogeny का मतलब क्या हो गया. ये टर्म phylogeny का मतलब यहां समझाता हूं. phylogeny ये हमें आगे भी पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. उसमें भी हम तफसीलन बात करेंगे इस पे. phylogeny का मतलब हो गया द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम बोलते हैं फाइलोजेनी. मीन्स मैं यहां लिखूंगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी. मतलब एक ऑर्गेनिज्म कहां से आ गया, इसका ओरिजिन क्या है, ये एवोल्यूशन में कैसे आ गया है, किस ऑर्गेनिज्म से बना है, कैसे तब्दील हुआ है वक्त के साथ. मीन्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड. एक और टर्म है बाय द वे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं. इट्स कॉल्ड ऑन्टोजेनी. ऑन्टोजेनी मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाट वी समटाइम्स वी से ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, व्हाट इज कॉल्ड बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नेस्ट हैकेल. एनीवे, सो सिंपली आप याद रखेंगे सिस्टमैटिक्स इज taxonomy along with phylogeny. What do you mean of phylogeny? The evolutionary history of organism. ये 3 टर्म्स थे हमारे. अगर आप देखेंगे यहाँ ये 3 टर्म्स हमें डिस्कस करने थे. बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स. थोड़ा 1 मिनट में बोलता हूँ. टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय वाल्टर रोजन. टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय A.P. de Candolle. टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय Carlos Linnaeus. Biodiversity means total number of living organisms present on planet Earth. Taxonomy means study of characterization, identification, nomenclature and classification, or simply it is the what we call as arrangement of living organisms by following certain rules or laws. And systematics is taxonomy along with phylogeny, that's evolutionary history of organism. Okay, आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर. हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. पहले समझो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, फिर आपको ये बाइनोमियल टर्म समझ आ जाएगी ये क्यों है यहाँ. नॉमेनक्लेचर मैंने अभी बोला था टैक्सोनॉमी में. नॉमेनक्लेचर मीन्स द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए नेम टू एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देना, इसको हम बोलते हैं नाम नॉमेनक्लेचर. जब कोई बच्चा पैदा होता है, फिर पैदा होने के बाद इसको एक नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम दिया जाता है. इस नेम देने को हम बोलते हैं नाम. ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज को नाम देना, वी कॉल इट नॉमेनक्लेचर. लेकिन यहाँ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, मतलब ऐसा नाम देना. नॉमेनक्लेचर मीन्स नेम देना. तो बाइनोमियल मतलब हो गया ऐसा नाम देना जो बना होगा 2 वर्ड्स का, 2 टर्म्स का, जो नाम बना होगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज binomial nomenclature. Means binomial nomenclature is system of applying a scientific name to an organism. यहाँ पे object है living organism because it is related to bioscience. The system of applying a scientific name to a living organism which consists, the name consists of 2 words is known as binomial nomenclature. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे चलो यही पे लिखूंगा. पहला पॉइंट लिखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम. शाबाश, क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? द सिस्टम, और यू कैन से द प्रोसेस, द सिस्टम ऑफ अप्लाइंग
a scientific name the system of applying a scientific name किसको देंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को. टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म the system of applying a scientific name to a living organism, लेकिन नाम बना होना चाहिए दो वर्ड्स का, दो टर्म्स का, consisting of two words is known as binomial nomenclature. क्यों ज़रूरत पड़ गई दुनिया के अंदर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, इस साइंटिफिक नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बिकॉज कॉमन नेम्स, वर्निक्यूलर नेम्स, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रूटीन में इस्तेमाल करते हैं नाम, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. कंफ्यूजिंग क्यों? बिकॉज एक ही चीज़ के डिफरेंट ज़ुबानों में, डिफरेंट इलाकों के अंदर अलग अलग नाम हो सकते हैं. जैसे एप्पल इंग्लिश में नाम है, सेब उर्दू में नाम है, अंबर और सूंठ हम बोलते हैं कश्मीरी में. तो हर एक ज़ुबान में एप्पल का अलग अलग नाम है, मैंगो का अलग अलग नाम है. सो जब हम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री जाएंगे, नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म will definitely change. So it is creating a lot of confusion. So in order to have standard name for every living organism, specific name has been applied to all the living organisms. अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक खास नाम है जो पूरी दुनिया के अंदर सेम रहेगा. It will not depend upon the language, or it will not depend upon the region or a country. This universality in scientific naming was need of the hour. It was earlier felt by scientists like we have Carolus Linnaeus, who established this system of naming living organisms, both plants, animals and all. So what is the need of this scientific nomenclature or binomial nomenclature? Simple मैं लिखूंगा यहाँ पे common or vernacular names, means common names, are confusing. क्यों है confusing? As they change, as they vary from place to place with language. इसलिए ज़रूरत पड़ गई यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर की, व्हाट वी कॉल एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये सिस्टम दिया, अभी मैंने बोला कैरोलस लीनियस ने ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया दुनिया के अंदर. हालांकि कैरोलस लीनियस से पहले ही कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमारे पास कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पुकारा जाएगा पूरी दुनिया के अंदर. लेटर ऑन बट दिस सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कैस्पर बॉहेन, एक साइंटिस्ट है, उसने पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन एस्टैब्लिश फाइनली किया है कैरोलस लीनियस ने, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है. तो हम लिखेंगे it was given oblique established by, actually established नहीं किया, anyway it was given by or established by Carolus Linnaeus. एक्चुअली इसका नाम था कैरल वॉन लिन, खुद का इसका नाम था 3 वर्ड्स का बना हुआ ट्राइनोमियल. लेकिन जब इसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किया, इंट्रोड्यूस दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश किया, इसने अपने नाम से तब्दीली शुरू की. ही वाज कैरल, CRL, कैरल, VON, वॉन, LINN, लिन, कैरल वॉन लिन. ही चेंज्ड हिज नेम टू कैरोलस लीनियस. इसने खुद का भी बाइनोमियल नाम दिया. एनीवे it was given by or established by Carolus Linnaeus in his book. एक बुक में इसके बारे में इसने तफसील दी है, कैसे नामिंग, इसके रूल्स, बाकी चीजें. स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, ये प्लांट्स के रिलेटेड थी.
दिस बुक वाज रिलेटेड टू प्लांट्स। और एक और बुक इसने पब्लिश की है एनिमल्स के रिलेटेड, एंड सिस्टेमा नेचुराe, this book is related to animals. Okay, this binomial nomenclature was established by what we call as Carlos Linnaeus. ये नाम याद रखिएगा आप, कहाँ गया Carlos Linnaeus. कुछ रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, कि एक नाम जब आप देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को, एनिमल को, कौन सा नाम आप दे सकते हो, इस नाम में कितने पार्ट्स होने चाहिए, पहला वर्ड कैसा होना चाहिए, दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या तफसील है, वो सारी हम देखेंगे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, देखो रूल्स क्या है। पहला यही रूल है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा, इट शुड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। सही बात है। नंबर 1 रूल, every living organism will have single universal name. Universal means applicable throughout the world. Every living organism will have single universal name consisting of, कितने वर्ड्स का, 2 वर्ड्स का, consisting of 2 words. ये हो गया पहला रूल। रूल नंबर 2 इज, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो 2 टर्म्स है, 2 वर्ड्स है, पहला वर्ड, पहली टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है और दूसरी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। हाँ, फर्स्ट वर्ड represents genus or generic epithet, means genus part. First word of scientific name represents genus or generic epithet, and second word represents, and second word आप मान लीजिए, second word represents specific epithet. Specific epithet, not species. बहुत सारे जगहों पे लिखा होगा second word represents species, नहीं, species गलत है लिखना, specific epithet। यहाँ पे आप genus लिख सकते हो, no problem, or generic epithet, no problem, but here we cannot write specific epithet. I mean, we cannot write species, we have to write only specific epithet. मैं क्यों नहीं बोल सकते exactly, मैं explain करूँगा इसको बस तुरंत कुछ समय के बाद, ये मैं explain करूँगा। हम species, यहाँ पे हमने genus लिखा, लेकिन यहाँ पे हम species नहीं लिख सकते, specific epithet. Anyway, जो ये पहला word है, what you call generic epithet, it represents noun. First word represents noun. And second represents adjective. Anyway, it is not that important. शाबाश। फोर्थ रूल इज, जब भी आप साइंटिफिक नेम देखेंगे, all scientific names have been derived from Latin language, Latini language. Even we discuss science. Science is also derived from Latin language. Scientia is the term,
S-C-I-N-T-I, scientia. Science is derived from, term science is derived from Latin term scientia, which means to know. इसी तरह all these scientific names have been derived from Latin language, but some have been derived from Greek even. Anyway, but textbook ने लिखा है all scientific names are derived from Latin language. अगर किसी और लैंग्वेज से हम नाम लेंगे उसको लेटिनाइज किया जाता है, मतलब को इसको लेटिन भाषा में लिया, जैसे इंडिया, इंडिया इंग्लिश टर्म है फॉर एग्जांपल, या भारत हिंदी टर्म है। लेकिन जब हम इंडिया को लेटिन लैंग्वेज में लाना चाहेंगे, हम किसी साइंटिफिक नेम में इंडिया लाना चाहते हैं जीनस के तौर पे या स्पीशीज के नाम के ऊपर, तो हमें क्या करना, हमें इंडिया को लेटिन भाषा में चेंज करना होगा, लेटिनाइज करना पड़ेगा, इंडिया बनेगा इंडिका। तो आपने बहुत सारी चीज़ों का लिखा होगा नाम, इंडिका, अफ्रीकाना, ऐसे अमेरिकाना। सो इसलिए क्योंकि नाम को थोड़ा लेटिन भाषा में तब्दील किया जाता है। एनीवे, ऑल साइंटिफिक नेम्स हैव बीन derived from Latin language, or if they are derived from other languages, they must be Latinized, they must be converted to Latin. Okay, number 5, जब भी हम हाथ से साइंटिफिक नाम लिखेंगे इसको अलग अलग करना पड़ेगा अंडरलाइन। मतलब मैंने हाथ से लिखा साइंटिफिक नाम, तो 2 वर्ड से इसमें मुझे जीनस को अलग करना पड़ेगा अंडरलाइन, और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूं कीबोर्ड पे, तो मुझे टाइपिंग के समय ख्याल रखना, मुझे अंडरलाइन नहीं करना है साइंटिफिक नाम को, मुझे इसको इटैलिक्स में डालना पड़ेगा, थोड़ा कर्व्ड डालना पड़ेगा। देख लीजिए, ये लिखूंगा यहां पे, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स are separately underlined. मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल में, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड ड्यूरिंग प्रिंटिंग, अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो, दे आर मीन्स साइंटिफिक नेम्स आर, they are put in italics, means they are italicized. okay, italics में डाला जाता है। मैं दिखाऊंगा, मतलब थोड़ा बहुत कर्व्ड, अगर आप ऐसे लिखते हो रोमन में, इसको थोड़ा कर्व में रखना पड़ेगा, जो टाइपिंग के समय हम करते हैं वर्ड में। एनीवे, लास्ट चीज, लास्ट रूल दिखाऊंगा, 6th रूल, साइंटिफिक नेम के बाद मीन्स हमने जब जीनस लिखा, फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा, बाइनोमियल नेम लिखा, हर बाइनोमियल नेम के बाद एंड पे लिखा जाता है नेम ऑफ द साइंटिस्ट और नेम ऑफ द ऑथर हु हैज गिवन द साइंटिफिक नेम, जिसने ये नाम दिया होगा इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे मैंगिफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इसका जीनस है, इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। लेकिन इस साइंटिफिक नेम के पीछे आप देखो बहुत सारे जगहों पे लिखा होगा लिन या एल लिखा होगा, एल या लिन मीन्स लीनियस ने, कार्लोस लीनियस ने नाम दिया होगा। इसको हम बोलते हैं ऑथर साइटेशन, मतलब ऑथर को साइट करना, ऑथर का हवाला देना, रेफरेंस देना, ये नाम फलानी साइंस ने दिया है। ओके, यहां लिखूंगा मैं लास्ट रूल, एट द end of scientific name, at the end of scientific name, s name scientific name आप पूरा लिखेंगे यहाँ, at the end of scientific name the name of author, author हो गया जिसने नाम दिया होगा यहाँ, the name of author is placed in abbreviated, usually abbreviated form में लगाते हैं, is put in or placed in abbreviated form, put in abbreviated form,
इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथर का नाम लिखना, कॉल ऑथर साइटेशन, इसको बोलते हैं हम ऑथर साइटेशन। साइटेशन मतलब हो गया रेफरेंस देना, ऑथर की हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये नाम किसने दिया, ऑथर साइटेशन। शाबाश। इस ऑथर साइटेशन को अंडरलाइन नहीं किया जाता, नेवर अंडरलाइंड। हम साइंटिफिक नाम को अंडरलाइन करते हैं, ऑथर साइटेशन को नहीं, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल में। और न ही इसको प्रिंटिंग के समय इटैलिक्स में रखा, इसको सीधे रोमन में रखा जाता है, सीधे रखा जाए, इसको अंडरलाइन नहीं किया जाता। अब इन सारे 6 रूल्स को मैं यहाँ पे करूंगा एक्सप्लेन एक एग्जाम्पल से। मैंगीफेरा indica, this is a scientific name of mango, this is the scientific name of mango, mango is national fruit of India, scientific name of mango is Mangifera indica। अब देखो पहला रूल, अब देख लेना पहला रूल क्या है, हर एक साइंटिफिक नाम बना होगा 2 वर्ड्स का, यहाँ 2 वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड बिगिनस विद कैपिटल लेटर, एम बिगिनस विद कैपिटल लेटर जीनस, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक बिगिनस स्मॉल लेटर, दैट्स ओके, दूसरा रूल भी हो गया। और जब हम हाथ से लिखेंगे, ओके, ये नाम जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिया इंडिका, बिकॉज इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड, वी हैव मोर देन 1000 varieties ऑफ मैंगो। सो मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, इट इज ए साइंटिफिक नेम। मैंने इसको हाथ से लिखा, यहाँ पे मैंने पेन से लिखा, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल सेपरेटली अंडरलाइन देम। मैं मैंगीफेरा को अलग करूंगा, अंडरलाइन उसको करूंगा। अगर मैं ये टाइप करता कंप्यूटर में, मैं इसको इटैलिक्स में रखता, लेकिन अंडरलाइन उस वक्त करना नहीं होता है। शाबाश। सो ये मैंगीफेरा इंडिका है, ये किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन भाषा से। अब फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, एंड here second letter, I mean second part of the name, it begins with a small letter, means genus always begins with capital letter, while as specific epithet, second word, I mean yes, second word begins with the small letter or lowercase letter. So you can put that this rule also there, आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। ये the genus name always begins with capital letter or uppercase letter, while as specific epithet begins with small letter or lowercase letter, that's okay। अब एट द एंड ऑफ साइंटिफिक नेम हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लास्ट रूल बोला, हमें एट द एंड ऑफ साइंटिफिक नेम लिखना पड़ेगा ऑथर का नाम, जिसने ये दिया होगा। तो ये कैरोलोस लीनियस ने दिया है, उसका नाम हम डालेंगे एब्रिवेटेड फॉर्म में, सीधे आप एल लिख सकते हो, एल डॉट, या इवन कभी कभार आप एल एन डॉट, लीनियस, दिस इज ऑथर साइटेशन, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। This, what does this Mangifera represent here, by the way, it represents genus, yeah, generic epithet. Indica represents specific epithet. Lin represents, देखो इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, author citation is never underlined, इस lin represents author, means it is author citation, author का नाम, author का हवाला। It begins with capital letter, true, it begins with small letter, okay, तो ये ऐसा हम रखते हैं। Handwritten scientific names are separately underlined, true, if they are printed they have to be put in italics, that's true, they are all derived from Latin language, yes, and हाँ, मैंने बोला था आपको, इसको हम जीनस लिख सकते हैं या जेनरिक एपिथेट, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट ही लिखेंगे, स्पीशीज नहीं, बिकॉज मैंगीफेरा इंडिका दिस होल इज अ species, mango is a species, Mangifera indica is a species, ये तो एक species है, mango तो एक species ही है। जब हम लिखेंगे इसको जीनस, इसको लिखेंगे species, अरे मतलब ये है ना, ये नाम ही है ना पूरा एक species का नाम, मैंगो का नाम, एक organism का नाम, जैसे homo sapiens, human beings, we are species, homo represents genus, while as sapiens represents specific epithet, not species, because ये सारा साइंटिफिक नेम ही इस मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज का नाम है, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है इस स्पीशीज नाम का, दैट्स व्हाई बेटर है लिखना इट इज जेनरिक एपिथेट, दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट, लेकिन ये जीनस है इसका, तो जीनस लिख सकते हैं, लेकिन ये स्पीशीज नहीं है, स्पेसिफिक एपिथेट है, इस नाम का एक पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। बड़ा सिंपल है। क्या है ये सिस्टम्स? पहला हम लिखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, देखो बहुत पुरानी बात है, जब साइंस उतना एडवांस नहीं था, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज है हमारे पास, तब भी साइंटिस्ट्स कोशिश कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की, इनको क्लासिफाई करने की, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी, डिस्कवर्ड, नेम्ड। कौन सी स्पीशीज कहाँ पे, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, ये सारा डेटा हमारे पास है। लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ ग्रुप किया जाए और अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किया जाए। तो इसी प्रोसेस में डिफरेंट किस्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वजूद में आ गए। पहला जो था अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, artificial system of classification is that classification, that grouping of organisms which is based on one or few characters, and those characters are morphological। वो easily साइंटिस्ट को नज़र आते थे, बिकॉज ये पुराने ज़माने की क्लासिफिकेशन, तब हमारे पास एडवांसमेंट उतनी नहीं थी टेक्नोलॉजी में जितनी आज है। तो हम क्या लिखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, it is based on one or few morphological characters। Classification of living organisms on the basis of one or few morphological characters is known as artificial classification। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप किया जाता था। बिकॉज अगर हम एक या दो कैरेक्टर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर हम लेंगे, एक कैरेक्टर बेस के हम करेंगे क्लासिफिकेशन, फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स या फ्लाइंग एनिमल्स वर्सेस नॉन फ्लाइंग। फ्लाइंग में आ जाएगा आपके बर्ड्स आएंगे, लेकिन आपके इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स तो करते फ्लाई। तो जब इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, बर्ड तो लेकिन वहाँ से कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, इंसेक्ट्स तो इनवर्टिब्रेट से, नॉन कॉर्डेट से, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए। तो एक कैरेक्टर के बेसिस पे या फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके बेसिस पे अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एक साथ ग्रुप किए जा सकते हैं। मीन्स इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे यकीनन। सो हियर unrelated organisms were grouped together। जो कि क्लासिफिकेशन का मकसद ही नहीं होता है। क्लासिफिकेशन का मकसद होता है रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखना। प्लांट्स के अंदर इसमें प्रॉब्लम थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब को रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर, इनको हम बोलते हैं ना वेजिटेटिव पार्ट्स, इनके कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, व्हाट वी कॉल्ड फ्लोरल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। इस क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर को, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को एक ही वेटेज दी जाती थी। मतलब एक कैरेक्टर आप लेंगे, वो वेजिटेटिव हो या फ्लोरल, इट विल नॉट मैटर। लेकिन हालांकि ये सही नहीं है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट, स्टेम एंड लीफ कैरेक्टर्स चेंज विद एनवायरनमेंट वेरी इजीली, दे आर प्लास्टिक, easily changing with environment, while as reproductive characters, flower character, fruit and seed character, they do not change easily with the environment, they are fixed, they are very conserved characters, they do not change with environment। यहाँ पे also vegetative and reproductive means here floral characters, vegetative and reproductive characters
were given equal weightage, means equal importance, which is not acceptable because vegetative characters are plastic, they change with environment very easily, while as reproductive characters are conserved characters, they do not change with environment. Okay, सो इसमें प्रॉब्लम्स थे, लेकिन एग्जांपल्स के तौर पे हम बोलेंगे किस किस ने ये इस्तेमाल किया है ऑलरेडी। ये इस्तेमाल किया है ऑलरेडी ये सिस्टम लीनियस ने भी, ये सिस्टम ऑलरेडी इस्तेमाल किया है एरिस्टोटल ने। एग्जांपल में लिखेंगे एग्जांपल 1 एरिस्टोटल, नो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड zoology। एरिस्टोटल, what Aristotle did, he divided plants into three groups. He divided plants into three groups. क्या Aristotle divided plants into three groups. Small plants को इसने बोला नाम herbs, grasses जैसे। इससे बड़े जो थे उनको बोला नाम shrubs, और लंबे लंबे plants को बोला नाम trees. He divided plants on the basis of habit, on the basis of structure of stem, or we say on the basis of height, into herbs, shrubs and trees. And he divided animals, इसने animals को भी divide किया है into two groups, on the basis of, or on the basis of presence or absence of blood, red blood. इसने एक, आप बोलेंगे इसको कैसे पता था तब उस जमाने में? ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर, मतलब ब्लड निकल रहा है बॉडी से नहीं निकल रहा है। इसने एक का नाम दिया एनेमा, दूसरे का नाम दिया इनेमा। ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, एनेमा एंड इनेमा। एनेमा कौन हो गए? विदाउट रेड ब्लड, और इनेमा विद रेड ब्लड, जिनमें आरबीसीज थे विद रेड ब्लड। सिंपल एक कैरेक्टर के बेसिस पे, इसने भी एक कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया प्लांट्स को। ओके, प्लांट्स को, एनिमल्स को एरिस्टोटल ने डिवाइड किया ऐसे। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल वाज सिंपल आर्टिफिशियल, यूजिंग वन और फ्यू कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसके बेसिस पे अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक साथ, इट हैड अ प्रॉब्लम। एनीवे, एग्जांपल नंबर 2 is of C. Linnaeus, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus also proposed a classification system for plants, what we call sexual system of classification. He proposed sexual system of classification. Why it is called a sexual system? Because he used the character of stamen, androecium actually we can call. He used the character of, shabash, used the character of androecium, or you can write stamen, no problem. Androecium, to divide plants into various groups. Okay, so sexual system of classification proposed by Carolus Linnaeus is also an artificial system of classification because he used only one character, that is character of androecium. स्टेमिन का, स्टेमिन है प्लांट में, नहीं है, इनको अलग रखा। अगर है तो कितने हैं, किसी में इतना नंबर। ऑन द बेस ऑफ दैट कैरेक्टर ऑफ स्टेमिन और एंड्रोशियम ही डिवाइडेड प्लांट किंगडम इनटू अराउंड 24 ग्रुप्स। एनीवे, हमें नहीं पढ़ना है। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दो एग्जांपल्स है। इट वाज बेस्ड ऑन वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बट इट इज अ प्रॉब्लम अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर, एंड आल्सो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वर गिवन इक्वल वेटेज। एरिस्टोटल एंड लीनियस हैव यूज्ड दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज वन आर्टिफिशियल। सेकंड क्या है फिर? नेचुरल। सेकंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। शाबाश। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या है? दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नॉट वन, नॉट टू, बट many characters, not only for morphology but also besides morphology, from anatomy, from reproductive biology, from phytochemistry, or from ultrastructure. Means number of characters are taken into consideration while classifying the living organisms. And this system, okay, I will write
इट्स बेस्ड ऑन, वहां पे मैंने क्या लिखा था, वन और फ्यू कैरेक्टर्स, यहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फ्रॉम किस किसे, फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, वो तो है ही, वो तो वहां भी इस्तेमाल करते थे, मॉर्फोलॉजी से। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी मिलना चाहे तभी क्लासिफिकेशन की जाएगी। फाइटोकेमिस्ट्री मींस केमिकल्स के बेसिस पे, फाइटोकेमिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर। Classification of living organisms on the basis of number of characters from all these branches is what we call as natural classification. Now, natural classification में या हम बोल सकते हैं it is based on natural affinities of living organisms. So on the basis of natural affinity they are grouped together. Okay, this natural system of classification, it has been used, a very sound natural system of classification has been proposed by Bentham and Hooker. मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे example. इसका नाम है पूरा जॉर्ज बेंथम, इसका नाम है जोसेफ डेल्टन हुकर। मैं सीधे लिखूंगा अब बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, मींस जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को इन्होंने क्लासिफाई किया। ऑफ सीड प्लांट्स इज फॉलोड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे यहाँ जो हर्बेरिया होते हैं, हर्बेरियम्स में तो हम यही सिस्टम करते हैं फॉलो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Indian herbaria do show, I mean do follow this system of classification of what we call as Bentham and Hooker. This is natural classification system. Third one is phylogenetic classification. मैंने आपको टर्म पढ़ाई थी फाइलोजेनी, मींस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिजम्स का कॉमन एंसेस्टर होता है, मतलब एंसेस्टर कॉमन है, फिर इसी से ये ऑर्गेनिज्म आ गए, ये स्पीशीज, ये स्पीशीज, ये स्पीशीज, ये स्पीशीज, एंसेस्टर कॉमन है। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कॉमन एंसेस्टर दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। जब ऐसी क्लासिफिकेशन की जाएगी कि ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, on the basis of common origin, so organisms are grouped together. This system of classification is called as phylogenetic. तो इसमें क्या लिखेंगे हम, it's based on evolutionary relationships. दैट इज, वो क्या मतलब हो गया, दैट इज ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज हैविंग कॉमन एंसेस्टर आर ग्रुप टुगेदर, मतलब को दे आर क्लासिफाइड टुगेदर और ग्रुप टुगेदर। इसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि किस साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी आर्टिफिशियल सिस्टम में, एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल सिस्टम, इवन कैरोलस लीनियस यूज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम, एंड नेचुरल सिस्टम वाज ए साउंड नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इसमें एग्जांपल है एंगुलर पेरेंटल क्लासिफिकेशन, इवन वन मोर, उसका नाम है ARMEN है, ARMEN, आर्मन तख्ताजान, तख्ताजान साइंटिस्ट का नाम है ये, आर्मन तख्ताजान। दिस साइंटिस्ट आर्मन तख्ताजान, he gave a concept
टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, क्योंकि ये फाइलोजेनी के साथ रिलेटेड है. टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश. इसने एक कॉन्सेप्ट दिया. एनीवे, आर्मन तख्ताजान have used, even one more is Hutchinson. They have used or proposed phylogenetic classifications. This is all about an artificial, natural and phylogenetic classification. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स थोड़ा बहुत बोलूँगा जल्द, ये उतना तूफान नहीं है. मेरिट्स और डिमेरिट्स इसमें हमें पढ़ने हैं, लेकिन मैं थोड़ा ब्रॉडर व्यू दूंगा. फाइलोजेन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या. ओके, पहला पॉइंट हम लिखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. 5 किंगडम, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैर्लोस लिनियस ने. उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 2 किंगडम्स में, 2 बड़े ग्रुप्स में. किंगडम मीन्स ए ग्रुप, बिगर ग्रुप. एक किंगडम को उसने बोला था रेगनम प्लांटे, दूसरे को नाम दिया था रेगनम एनिमेलिया. फिर बाद में रेगनम को किंगडम बोला गया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, और प्लांट एंड एनिमल किंगडम. लेकिन इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में मसला था कि बैक्टीरिया न तो प्लांट है ना एनिमल है, फंजे न प्लांट है ना एनिमल है, प्रोटिस्टस न प्लांट है ना एनिमल है. इनको रखा गया था इधर उधर, तो ये सिस्टम सही नहीं था. फिर बाद में तीसरा किंगडम बनाया गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स थे. फिर चौथा किंगडम बनाया गया, उसमें भी प्रॉब्लम्स रहे. फिर बाद में पता चला कि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है. ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट विटाकर, R.H. विटाकर. एनीवे, सो मैं लिखूंगा पहला पॉइंट. इट वाज proposed by, means 5 kingdom classification was proposed by Robert Whittaker, या मैं इसे लिखूंगा R.H. Whittaker. 1969 में इसने दिया. What he did, he divided the whole living world, all living organisms into 5 kingdoms. लेकिन इसने क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या बेसिस इसने लिए ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए, 5 किंगडम्स में डिवाइड करने के लिए इसने बेसिस लिए. मैं लिखूंगा यहां पे क्राइटेरिया यूज्ड. किस क्राइटेरिया के बेसिस पे इसने डिवाइड किया लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में. क्या क्या क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया इसने इस्तेमाल किए. पहला क्राइटेरिया इसने लिया, पहला क्राइटेरिया दैट इज सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर का मतलब यहां पे हो गया प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक. लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है क्या यूकैरियोटिक. मैं लिखूंगा यहां पे ब्रैकेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक. सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक क्राइटेरिया ये लिया. दूसरा क्राइटेरिया इसने लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेलड है या मल्टीसेलुलर है. यूनि और मल्टीसेल्युलर, ये दूसरा कैरेक्टर है. तीसरा क्राइटेरिया लिया, तीसरी बेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें या तो ये होगा ऑटो या होगा हेटेरोट्रॉफ. हेटेरोट्रॉफ में फिर कुछ भी हो सकता है. ये सेप्रोट्रॉफ हो सकता है, जिसको कभी कभार गलत अंदाज में सेप्रोफाइटिक बोला जाता है, हालांकि वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती. इट्स ए मिसनॉमर. सेप्रोट्रॉफ इज ए बेटर वर्ड देन सेप्रोफाइटिक. एनीवे, ऑटोट्रॉफ हो सकता है, हेटेरोट्रॉफ हो सकता है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इसने ली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. मतलब गो ये जो विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज फाइलोजेनेटिक इन नेचर. मतलब इसने एवोल्यूशनरी स्टडी के बेसिस पे ही ये क्लासिफिकेशन के एवोल्यूशनरी स्टडीज इंक्लूडेड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स.
On the basis of these five characteristics, or we say five criteria, he has divided living world into five kingdoms. These are the five criteria. और क्या क्या इसने kingdoms इसमें divide किए हैं, यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं. लिविंग वर्ल्ड को कितने किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. चलिए, पहली किंगडम क्या है? फर्स्ट इज लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया 5 किंगडम से. फर्स्ट इज किंगडम मोनीरा. बैक्टीरियल किंगडम, प्रोकैरियोटिक किंगडम, एनीवे लिखूंगा अभी. दूसरी किंगडम व्हाट वी कॉल किंगडम प्रोटिस्टा. आपको जरूरी पहला किंगडम मोनीरा ही लिखना पड़ेगा, दूसरी किंगडम लाजमन प्रोटिस्टा ही लिखनी पड़ेगी, बिकॉज फाइलोजेनेटिक है ये. पहले बैक्टीरिया आ गए, बैक्टीरिया से बन गए फिर प्रोटिस्टस. फिर तीसरी, चौथी, पांचवी ये मैटर नहीं करेगा आप क्या लिखेंगे. क्यों, बता देता हूं 1 मिनट में अभी. किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया means animal kingdom. Last but not least, the kingdom that he introduced to the 4 kingdom. 4 kingdom already थे दुनिया में, इसने 5वां इंट्रोड्यूस किया. That was kingdom fungi. किंगडम फंजे, 5th किंगडम. कौन सी क्या किंगडम है अभी मैं पहले आपको बोलूंगा. चलो यहीं पे बोलूंगा. देखो असली क्या है, दुनिया के अंदर वक्त में पहले बैक्टीरिया आ गए. आपको पता है बैक्टीरिया सबसे पहले दुनिया के अंदर आ गए, ठीक है. दिस एम मोनीरा प्रोकैरियोटिक नाम. फिर वक्त के साथ मोनीरा से बन गए, बैक्टीरिया से बन गए प्रोटिस्टस. दैट्स ओके. फिर प्रोटिस्टस से ही बन गए प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, फंजे भी. प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, फंजे भी. इसलिए आपको पहले ऐसे, दिस इज टाइम स्केल, टाइम ऐसे, वक्त में पहले सबसे आ गए मोनीरा, फिर बन गए प्रोटिस्टा. फिर आप प्लांटे एनिमेलिया फंजे लिखो, या यहाँ से फंजे एनिमेलिया प्लांट लिखो, या पहले एनिमल फंजे, लेकिन आपको पहले मोनीरा फिर दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, फिर इसमें आप इंटरचेंज कर सकते. अब यहाँ से आ जाए, यहाँ से बीच में आ जाओ, नो प्रॉब्लम. एनीवे, सो किंगडम मोनीरा क्या है बाय द वे? किंगडम मोनीरा इज, it is the kingdom of unicellular prokaryotes. मैंने बोला आपको इसने सेल स्ट्रक्चर भी लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी ली. सो दिस kingdom Monera is the kingdom of unicellular all unicellular prokaryotic organisms have been included in kingdom Monera. Second, this protista is the kingdom of unicellular eukaryotes. All unicellular single-celled organisms but eukaryotic in nature have been included in kingdom Protista. Kingdom Protista is the kingdom of unicellular eukaryotes. Kingdom Plantae, it is a kingdom of multicellular autotrophs, क्योंकि mode of nutrition autotrophic है. Animalia is a kingdom of multicellular heterotrophs, हालांकि most of them are holozoic heterotrophs. And this one is a kingdom of, इसमें कुछ unicellular भी है fungi anyway, but majority इसमें है multicellular. It is a kingdom of multicellular decomposers or saprotrophs. Decomposers डिकम्पोजिशन करते हैं, saprotrophs से डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. So these are the 5 kingdoms that have been included in 5 kingdom system by R.H. Whittaker. Okay,
So which kingdom is completely prokaryotic? That is Monera, unicellular prokaryote. And these 4 kingdoms are eukaryotic. ये चारों के 4 kingdoms जो है, these 4 are in 5 kingdom classification of R.H. Whitaker. How many kingdoms are prokaryotic? Single kingdom is prokaryotic, that's Monera, while rest 4 are eukaryotic kingdoms. Okay, so इसमें हमें पढ़ना है फिर merits and demerits. चलिए, what are the merits? Merits means advantages. Advantages क्या क्या है 5 kingdom classification के? पहला मेरिट इसका, पहला एडवांटेज इस 5 kingdom क्लासिफिकेशन का था, वो ये था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से अलग किया गया. अर्लियर क्लासिफिकेशंस में ऐसा नहीं था, वहाँ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक जगह था, एक साथ. सो पहला एडवांटेज आ जाएगा इसका, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर सेपरेटेड. ये अलग अलग किंगडम्स में रखे गए हैं, यूनिसेलुलर अलग, मल्टीसेलुलर अलग. ये एक एडवांटेज है इसका. दूसरा एडवांटेज इसका कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी अलग अलग किया गया. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक organisms have also been separated. ये भी अलग अलग क्लासिफिकेशन में लाए गए. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या था, अर्लियर किंगडम्स में, अर्लियर क्लासिफिकेशंस में ऑर्गेनिज्म देखो, देखो यहां लिखूंगा मैं, दिस इज क्लोरिला. क्लोरिला क्या है भी बोलूंगा मैं. एक और मैं लिखूंगा, दैट इज क्लाइमेडोमोनास. ये साइंटिफिक नेम है इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं अलग अलग. क्लोरिला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्लाइमेडोमोनास. आप बोलेंगे ये दोनों क्या है? हाँ, यहां लिखूंगा ये क्या है दोनों. ये दोनों है, एक मिनट, ये दोनों है यूनिसेलुलर, ये दोनों है फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉफिक, और इन दोनों के पास है सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट. क्लोरिला और क्लाइमेडोमोनास दोनों है यूनिसेलुलर भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, इनके पास सेल वॉल भी है. और अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा और पैरामीशियम ये क्या है, ये भी यहां पे बता देता हूं ये क्या है. ये दोनों भी यूनिसेलुलर है. यूकैरियोटिक तो है ही, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ये भी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ये भी है. ओके, यूनिसेलुलर, लेकिन इन दोनों में से कोई ऑटोट्रॉफिक नहीं है, दोनों है हेटेरोट्रॉफिक. और इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल माइनस, सेल वॉल इज एब्सेंट. लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है ना, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट. बैक्टीरिया नहीं है, ये यूकैरियोट्स है. ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट. इसमें सेल वॉल नहीं है, उसमें सेल वॉल है. ये हेटेरोट्रॉफ है, वो ऑटोट्रॉफ है. तो क्या किया गया, क्लोरिला एंड क्लाइमेडोमोनास इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस they were in kingdom Plantae because it is photosynthetic cell wall. क्लोरिला एंड क्लाइमेडोमोनास आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में ये किंगडम प्लांटी में पढ़ाए जाते थे,
लेकिन आजकल एक किंगडम प्लांटी में नहीं, किंगडम प्लांटी में सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर को हटाया गया वहां से। और अमीबा पैरामीशिया आपने देखा होगा, जूलॉजी में पढ़ा जाता था एक ज़माने में, अमीबा एक एनिमल माना जाता था। आजकल न अमीबा न पैरामीशियम, आजकल एनिमल्स नहीं है। सो अर्लियर दे वर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं है, हेटेरोट्रॉप्स है। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन कैरेक्टर है, ये दोनों यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है। इसीलिए क्या किया गया, ये वाला और ये वाला, क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास which were earlier placed in kingdom Plantae, plant kingdom, have been merged, have been grouped with amoeba and paramecium, which were earlier placed in animal kingdom. They have been now grouped. Chlorella chlamydomonas from plant kingdom, amoeba and paramecium from animal kingdom. ये दोनों को लाया गया, एक कॉमन किंगडम इनको जमा किया गया, that is kingdom protista. Means देखो टेक्स्ट बुक ने क्या लिखा है, जबरदस्त बात उसने लिखी है। किंगडम प्रोटिस्टा जो 5 किंगडम में एक क्लासिफिकेशन आई मीन एक किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास व्हिच वेर अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटे बिकॉज दे हैड दिस कैरेक्टर्स। हाँ, क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास विद अमीबा एंड पैरामीशियम व्हिच वेर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। किंगडम प्रोटिस्टा ने इन दोनों को साथ में लाया, एक नया किंगडम बनाया गया किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को जमा किया गया। वेदर नाउ ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, इट विल नॉट मैटर। किंगडम प्रोटिस्टा एक हेटेरोजीनियस किंगडम है जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स जमा किए गए, सेल वॉल हो या ना हो इट विल नॉट मैटर, ऑटोट्रॉफ हो हेटेरोट्रॉफ इट विल नॉट मैटर। तो तीसरा इसका जो मेरिट था वो ये था कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो है अलग अलग किंगडम्स में वो लाए गए on the basis of common feature, they have been put in common kingdom. So kingdom protista is brought chlorella and chlamydomonas with amoeba and paramecium. These two were earlier placed in kingdom Plantae on the basis of these characteristics, and these two were placed in animal kingdom on the basis of these characteristics. These are three main what we call as merits of 5 kingdom classification. अब इसके demerit क्या है, drawbacks क्या है? Demerits of डिमेरिट मतलब हो गया ड्रॉबैक, लिमिटेशन, फ्लॉ। इसकी प्रॉब्लम है फिर भी जब आप 5 किंगडम्स देखते हैं, इसमें से वायरसेस का कहीं मेंशन ही नहीं है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात है, वायरसेस का कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। मींस वायरसेस कुड नॉट हैव बीन कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन 5 किंगडम, एक ड्रॉबैक इसका। एक और है लाइकनस, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लाइकनस जो कि एक एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, लाइकनस फंजे और एल्गी, इनको भी क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं रखा गया है। लाइकनस ऑल्सो have not been classified. इसके ड्रॉबैक से कि न तो वायरसेस के लिए कोई जगह है, न लाइकन्स के लिए, और न ही वो वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड ऑल, उनके लिए भी कोई जगह। ये ड्रॉबैक है इसके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ Monera. So kingdom what we call as Monera, हाँ, general characters of kingdom Monera. Monera मैंने आपको बोला अभी, it is a kingdom of unicellular prokaryotes. एक सारे के सारे बैक्टीरिया इसी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर प्लेस किए जाते हैं। इसके बारे में तफसीलन हम बात करेंगे। देख लीजिए यहाँ, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम Monera। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम Monera, देखिए ब्रीफ हम देखेंगे इसको। Monera के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
सबसे पहला जो मैंने आपको बोला, इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। सही बात है, सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट यूकैरियोट आपने पढ़ा है सेल बायोलॉजी में, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, वो प्रोकैरियोट से। अब मैं सेल की बात करूंगा। शाबाश, इट्स द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। These are most abundant organisms on earth। धरती के ऊपर सबसे ज्यादा नंबर असल में इन्हीं का है, लेकिन इनको हम आइसोलेट अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, दैट्स द रीजन। इनका नंबर लेकिन सबसे ज्यादा है। इवन एक स्टैटिस्टिक्स में आपको बोलूं, एक एस्टिमेट है, 1 ग्राम ऑफ सॉइल, सॉइल का 1 ग्राम आप लीजिए, इट कंटेन्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। 1 ग्राम ऑफ सॉइल में, अगर आपको साइंटिफिक एस्टिमेट बोलूं, 10 पावर 9 different types of living I mean these microorganisms are present in 1 gram of soil. So is the diversity, the number of these living organisms. Okay, these are most abundant living organisms on earth. They are cosmopolitan। cosmopolitan मतलब को they are present everywhere। जहाँ नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब बाकी एनिमल्स, बाकी प्लांट्स जहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब एवरीवेयर इन ऑन अर्थ, दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज दे आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन वाटर में होते हैं बैक्टीरिया, एयर में, जब एयर भी थी उसमें भी होते हैं ये, सॉइल में तो ये हजारों होते हैं, करोड़ों होते हैं, ओशंस में तो ये होते हैं नमकीले पानी में, मार्शी एरियाज में, दलदल जमीन में, वहां पे भी होते हैं। अरे अंडर स्नो, स्नो के अंदर भी ये देखे गए हैं। अरे इवन मैंने पिछली बार एक आर्टिकल पढ़ा था, नासा ने डिस्कवर किए हैं बैक्टीरिया इवन ऑन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक लार्ज स्पेस स्टेशन है इन दैट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ 400 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूर है, तो वहां पे भी माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया को देखा गया। एनीवे, सो अंडर स्नो है ये। इन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स में, हमारे बॉडी के अंदर कितने बैक्टीरिया, इवन आप बैक्टीरिया खाते भी हो, आपने देखा है, जैसे लैक्टोबैसिलस आप खाते हो, जो इसमें होता है, कर्ड में होता है, कॉमन सेंस। सो इवन ऑन द बॉडी ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में मतलब इन्होंने कोई जगह दुनिया में नहीं छोड़े जहां आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। ओके, इन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने भी बोला, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब सेल स्ट्रक्चर इनका बड़ा सिंपल है। हाँ अब देखो, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इनका बड़ा सीधा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है ही नहीं, अंदर क्या है, साइटोसॉल, नथिंग। साइटोसॉल में है न्यूक्लियोइड, डबल स्ट्रैंडेड DNA और कुछ राइबोसोम्स। शाबाश, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर में बड़े कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ओके, बैक्टीरिया का होता है सेल वॉल। बैक्टीरिया का होता है सेल वॉल जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं या म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे, बैक्टीरियल सेल वॉल is made of, is composed of peptidoglycan, PEPTIDO, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, ऑब्लिक म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं।
एक्चुअली ये पॉलीमर होता है दो शुगर्स का, नैग एंड नेम ज्वाइंड बाय टेट्रापेप्टाइड। एनीवे आपको नहीं लिखना, आप सिंपल याद रखो ये क्या है, ये बना होता है दो चीज़ों का, ये बना होता है एमिनो एसिड्स का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, आप याद रखो ऐसे, ये एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। शाबाश, बैक्टीरियल सेल वॉल। फिर आगे बढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं क्या, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। शाबाश, नेक्स्ट, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला भी हो सकता है लोकोमोशन के लिए। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला may be present which aids, मतलब वो which helps in locomotion, ये locomotion में हेल्प करता है। आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, और अंदर होते हैं इनके अंदर 70s राइबोसोम्स, S means Swedberg unit, okay? Ribosome, 70s ribosomes are present. Ribosomes का रोल होता है ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बस यहाँ इस पेन से लिखूंगा। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं, यहाँ लिखूंगा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शेप्स क्या क्या हो सकते हैं, शाबाश, mainly 4 shapes, mainly 4। एक है what we called coccus, मैं लिखूंगा यहाँ पे PL means plural, cocci, plural is cocci। जब बैक्टीरिया होगा spherical shape का, spherical shaped बैक्टीरिया are called cocci, plural हो गया cocci, singular हो गया एक को बोलेंगे कोकस। दूसरी शेप है बैसिलस, प्लूरल आ जाएगा बैसिलाई, मतलब को जब बैक्टीरिया की शेप होगी रॉड लाइक और रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड। ऐसे एक और है विब्रियम, प्लूरल आ जाएगा इसका विब्रियो, जब बैक्टीरिया की शेप होगी कॉमा लाइक, कॉमा शेप्ड, बैक्टीरिया कॉमा जैसा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज स्पाइरिलम, प्लूरल इसका बन जाएगा स्पाइरिला, जब बैक्टीरिया की शेप होगी स्पाइरल शेप, मतलब हेलिकल, स्पाइरल मतलब ऐसा। तो फ्लैजिला भी हो सकता है, फ्लैजिला आप ऐसे बना सकते हो, फ्लैजिला थ्रेड लाइक। एनीवे दिस आर द कॉमन 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अब इसी के साथ नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन क्या होता है बैक्टीरिया की? कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है लेकिन मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक है कुछ हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी है फिर 2 टाइप्स, ये हो सकता है फोटो ऑटोट्रॉफ या हो सकता है कीमो ऑटोट्रॉफ। Chemo autotroph. Photo autotroph means they utilize sunlight to convert carbon dioxide plus H2S। बैक्टीरिया चूंकि वाटर इस्तेमाल नहीं करता है एज हाइड्रोजन सोर्स, इससे ग्लूकोज तैयार करता है। जब बैक्टीरिया करेगा इस्तेमाल सनलाइट को कार्बन डाइऑक्साइड और
हाइड्रोजन सल्फाइड को मिलाने के लिए ताकि ग्लूकोज बनाया जाए, दिस इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब हो गया यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S को मिलाएगा, बनाएगा ग्लूकोज, लेकिन ये सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करेगा, फोटो का नहीं, लाइट का नहीं, सनलाइट का इस्तेमाल है, ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा जो ये ऑक्सीडेशन करके हासिल करेगा। मेरे को यहाँ पे केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करेगा जो ये लाएगा किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके। चलिए, तो लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। वास्ट मेजॉरिटी मतलब को अक्सरियत, vast majority of bacteria are heterotrophs, vast majority of bacteria are heterotrophs। okay, इसमें से अक्सरियत क्या है? डिकम्पोजर्स मेनली, ज़्यादातर डिकम्पोजर्स है। ओके ये हो गया न्यूट्रिशन। इसके बाद थोड़ा बहुत बोलूँगा रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया? रिप्रोडक्शन में नॉर्मली, सिंपल में बोलूँगा यहाँ पे, रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है? बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स हिस्सा होना। हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें बीच में सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, अगर मेम्ब्रेन होता तो ये न्यूक्लियस बन जाता। और फिर होता है वही राइबोसोम, खडारे राइबोसोम, मीन 70 राइबोसोम कस्ताम असाइमिस टोटल, बस बाकी शिकस्त। सो इस सेल को क्या होता है? इस सेल में पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, ये डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, हो गया डीएनए मॉलिक्यूल ने 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनाए, राइबोसोमस गए ओकन 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 ओकन, बाकी बीच में सेल वॉल बन गया, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल। इस बैक्टीरिया के अल्टीमेटली 2 हिस्से हो जाए, एक बैक्टीरियल सेल इधर, दूसरी बैक्टीरियल सेल इधर, मतलब सेल बीच में डिवाइड हो जाती है, 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसका बाइनरी फिशन, सिंपल सेल डिवीजन ये बैक्टीरिया में होता है नॉर्मली, 20 मिनट में ही ये इक्वल करता है। लेकिन कभी कभार बैक्टीरिया कर सकता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन कभी कभार बैक्टीरिया, हालांकि एंडोस्पोर फॉर्मेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, इट इज ए मोड ऑफ पेरिनेशन। तो मतलब क्या है एंडोस्पोर फॉर्मेशन? मतलब क्या होगा? एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी ये कर सकता है। क्या मतलब आपको? ये बैक्टीरिया एक है, इसमें सारा कुछ अंदर है, बैक्टीरिया बनाएगा बाहर से बहुत थिक वॉल, बहुत मोटा वॉल बनाएगा बाहर से। इस वॉल की मदद से ये करेगा टाइड ओवर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये खुद को बचाएगा इस वॉल से। इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर वॉल। तो ये करेगा इसको हेल्प इन एडवर्स कंडीशंस। हालांकि ये रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा, इट विल ओनली हेल्प इट टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। इट्स व्हाई वी से एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रादर इट्स अ मोड ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। दैट्स ऑल एक्चुअली अबाउट दिस जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ दिखाऊंगा मैं एक डायग्राम आपको, सिंपल डायग्राम। हाँ, ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या है देखो, ये बाहर से इसका ये सेल वॉल है। हाँ, जो सेल वॉल मैंने बोला आपको जो बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकान का, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, दिस कॉमन सेंस, सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल के अंदर होता है। प्लाज्मिड ये कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आउटसाइड द मेन डीएनए। This is circular loop of DNA, what we call nucleoid. साइटोप्लाज्म तो है, राइबोसोम खटारे वाले, कौन से 70S वाले, फ्लैजेला भी हो सकता है, बस बाकी इसमें ज़्यादा तूफान नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा। वेरी सिंपल, क्या है प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा कौन सी किंगडम है? अभी भी बोला था शाबाश। लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज द किंगडम, किन की, ऑफ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। कौन था? बैक्टीरिया, मनीरा। ये है किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। यस, दैट्स ओके। मतलब को ऑर्गेनिज्म फिर से यूनिसेल्यूलर है लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इनमें, शाबाश। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, कॉमन सेंस, इसमें न्यूक्लियस होगा वेल डेवलप्ड प्रेजेंट, और होंगे अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज सही बात। और याद रखिएगा, boundaries of this kingdom are
boundaries of this kingdom are not well defined. Boundaries of this kingdom are not well defined. मतलब that is what may be a photosynthetic protist to one scientist. What may be a photosynthetic protist to one scientist or one biologist may be a plant, or it can be a plant to another scientist. ये मतलब क्या है? मतलब क्या है? मैंने आपको बोला अभी क्लोरेला या क्लाइमेडोमोनास. क्लोरेला और क्लाइमेडोमोनास दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस किंगडम में रखते हैं? प्रोटिस्टा में. जब ऑर्गेनिज्म कोई साइंटिस्ट देखेगा क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास को, वो क्या बोलेगा? ये प्रोटिस्ट से. लेकिन क्योंकि दोनों में फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है और दोनों में सेल वॉल भी है, सेल वॉल होना, फोटोसिंथेसिस करना, ये प्लांट की भी खासियत है ना, तो अदर साइंटिस्ट में टेक इट इज ए प्लांट. दैट्स व्हाई बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. और इसमें सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म भी है, सेल के वॉल के बगैर भी है, इसमें ऑटोट्रॉफिक भी, इसमें हेटेरोट्रॉफिक भी है. दैट्स व्हाई वी से इट इज a heterogeneous kingdom. heterogeneous kingdom मतलब इसमें हर एक किस्म का ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा. सेल वॉल वाला भी, सेल वॉल के बगैर भी, ऑटोट्रॉफ भी मिलेगा, हेटेरोट्रॉफ भी मिलेगा, लेकिन सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट ही होंगे. ओके. फिर होते कहाँ ये ज्यादातर होते प्राइमरीली एक्वेटिक. ज्यादातर ये वाटर में ही पाए जाते हैं, एक्वेटिक. बोथ फ्रेश एंड मरीन. फ्रेश वाटर मीन्स जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है, जो नालों का, नदियों का पानी, रिवर्स का पानी, उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है. और जो वाटर हम पीते हैं इसका पोटेबल वाटर. फ्रेश वाटर मे नॉट बी पोटेबल. बोथ फ्रेश एंड मरीन. मरीन मीन्स वो वाटर जिसमें सैलिनिटी होगी हाई, इसमें साल्ट कंसंट्रेशन हाई होगी. ओके. प्राइमरीली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश एंड मरीन. और रिप्रोडक्शन करते हैं ये, रिप्रोडक्शन बाय both asexual and sexual methods. दोनों तरीकों से करते हैं रिप्रोडक्शन. और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 ग्रुप्स में. आपने पढ़ा होगा क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स. लेकिन यहाँ पे मैं 2 ग्रुप्स की बात करूंगा. कंपैरिजन बिटवीन क्राइजोफाइट्स एंड यूग्लिनोइड्स. ये क्या है? एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. एक को हम बोलते हैं नाम क्राइजोफाइट्स, जो मैंने यहाँ भी लिखा है. दूसरे को नाम देते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, यहाँ नहीं लिखा है मैंने. एक और है यूग्लिनोइड, जो यहाँ पे लिखा है. एक और है स्लाइम मोल्ड्स, एक और है प्रोटोजोआनस. ये 5 ग्रुप से. ना प्रोटोजोआ मैंने लिखा है, ना स्लाइम मोल्ड लिखा है, ना डाइनोफ्लैजिलेट लिखा है मैंने. इन दोनों के बीच कंपेरिजन आपके एग्जाम में आ सकता है. सो हमारा क्या है? हमारा यह है कंपैरिजन, मतलब आपको डिफरेंस बोलनी है, उसमें क्या है, इसमें क्या कैरेक्टर है. तो यहां पे लिखूंगा पहले मैं क्राइजोफाइट्स. क्राइजोफाइट्स में क्या क्या आता है? वेरी सिंपल. इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं. इंक्लूड्स डायटम्स आते हैं इसमें, एंड डेस्मिड्स. डेस्मिड्स को हम कॉमनली बोलते हैं गोल्डन एल्गी. क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स और गोल्डन एल्गी. हो गया पहला पॉइंट. नेक्स्ट, ये क्या है? प्राइमरीली एक्वेटिक. क्राइजोफाइट्स एक्वेटिक होते हैं, मतलब को ये आपको पानी में ही मिलेंगे, फ्रेश में भी और मरीन में भी. शाबाश. एक और है, नॉर्मली ये फोटोसिंथेटिक भी है. क्या है ये? फोटोसिंथेटिक भी है. और क्या है? नॉन मोटाइल भी है, मतलब इनमें फ्लैजेला व्लैजेला नहीं होता है.
पानी में होते, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, नॉन मोटाइल, लेकिन फिर मूव कैसे करते हैं? वाटर करंट से। जब वेव आ जाती है वाटर करंट के साथ ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब को आंखों से आपको ये नजर नहीं आ जाएंगे, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही नजर आते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक, इनको हम बोलते हैं नॉर्मली प्लैंक्टॉन्स। Planktons means these are small microscopic photosynthetic, these algae, what we call as planktons. Okay. Planktons. हाँ, नेक्स्ट जो है डायटम्स है, यहाँ पे लिखा डायटम्स। डायटम्स की बॉडी जो है वो बनी होती है दो ओवरलैपिंग शेल्स की। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। डायटम्स की बॉडी में होते हैं दो ओवरलैपिंग शेल्स। द बॉडी ऑफ डायटम्स इज मेड, फिर अंदर होता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये यूकेरियोट है, फिर बाकी सारा साइटोप्लाज्म व्हाटएवर। सो द बॉडी ऑफ डायटम्स इज मेड ऑफ टू ओवरलैपिंग शेल्स, टू ओवरलैपिंग प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स। ऐसा लग रहा है ना ये सोप का बॉक्स है। डायटम्स की बॉडी ऐसी होती है। शाबाश। बॉडी ऑफ डायटम्स is made of two overlapping shells which fit, जो फिट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, like soap box। शाबाश। नेक्स्ट, डायटम जब मर जाते हैं, क्योंकि ओशन में होते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, तो ओशन के अंदर इनका डिपॉजिट, इनका होता है सिलिका रिच सेल वॉल। सिलिका रिच सेल वॉल होता है इनका डायटम्स का। ये सारा जो सेल वॉल इनका, इनकी बॉडी जो है जब खत्म हो जाती है ओशन के बॉटम पे ऊपर जमा हो जाती है, और वक्त के साथ ये डिपोजिशन जमा हो जाती है। इसको हम बोलते हैं नाम डायएटोमेशियस अर्थ या डायएटोमाइट। व्हाट इज डायएटोमेशियस अर्थ और डायएटोमाइट? इट इज द डेड बॉडीज, the cellular, what we call as silica rich cell walls of diatoms which accumulate at the bottom of ocean. Shabash. The silica rich cell walls, silica rich cell walls of diatoms accumulate in ocean फॉर्मिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं नाम? डायएटोमाइट, या इसको हम बोलते हैं कभी कभार डायएटोमेशियस अर्थ, नो प्रॉब्लम। डायएटोमेशियस अर्थ, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? इसको इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में और सिरप्स में। दिस इज ऑल अबाउट क्राइजोफाइट्स। एक और क्या है हमारे पास? यूग्लिनोइड्स। यहां लिखूंगा मैं यूग्लिनोइड्स के बारे में। शाबाश। यूग्लिनोइड्स क्या, यहां लिखूंगा पहला पॉइंट। यूग्लिनोइड्स के बारे में खास बात है, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। और किस फ्रेश वाटर में? जो स्टैग्नेंट होगा, रुका हुआ होगा। स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी। क्राइजोफाइट्स में सेल वॉल होता है कि नहीं? हाँ, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होता है। इनमें क्या होता है? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिकल इज प्रेजेंट। उसको बोल देना पेलिकल। सेल वॉल के बदले होता है प्रोटीन कवर कॉल्ड पेलिकल इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बन जाती है फ्लेक्सिबल। चलिए, इनमें होते हैं दो फ्लैजुला। दे कंटेन टू फ्लैजुला। उनमें फ्लैजुला नहीं था, वो पैसिवली करते थे मूव, वो नॉन मोटाइल थे। टू फ्लैजुला होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक लॉन्ग। वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। चलिए, इनमें यूग्लिनोइड्स में होता है कंटेन क्लोरोफिल ए। इनमें क्लोरोफिल ए होता है बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह, लाइक
हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की तरह इसमें क्लोरोफिल ए होता है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कब? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट नहीं होगी, रात को ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, फिर रात को ये क्या करेंगे? रात को कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा? रात को ये करता है एनिमल्स की तरह बिहेव, सीधे खाता है बाकी इंसेक्ट्स को। एंड ड्यूरिंग नाइट या एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिहेव लाइक एनिमल्स। इसलिए दिन को करता है ये लाइट की प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस, रात को एनिमल्स की तरह बिहेव करता है। इसलिए ना हम इसको बोलेंगे पूरा फोटोसिंथेटिक, ना बोलेंगे पूरा हेटेरोट्रॉफिक, ना ऑटोट्रॉफ, ना हेटेरोट्रॉफ। दैट्स व्हाई वी से यूग्लिनोइड्स आर मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब को दे शो मिक्स्ड टाइप ऑफ behavior as far as nutrition is concerned. They are autotrophic in presence of light, they synthesize their own food, but in presence of in absence of light they show like animal behavior. Okay, इसमें example है Euglena. Euglena is said to be a connecting link between plants and animals. Euglena ऐसा है, यहाँ पे Euglena है, मेम्ब्रेन के बाहर है यहाँ पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर, दो फ्लैजला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। एनीवे दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिनोइड्स। अब लास्ट चीज, यहीं पे हम एंड करेंगे। टर्म्स 3 है, बस यहाँ पे एंड हो जाएगा। 3 टर्म्स। एक टर्म है वायरॉइड। पहले मैं आपको बोलूं, वायरस आपने सुना होगा नाम। वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर और एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, इनमें लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं। जैसे आपको पता है SARS-CoV-2, व्हाट यू कॉल कोरोना वायरस, विच कॉज्ड पैंडेमिक कोविड-19, इट वाज अ वायरस। वायरसेस में मतलब मोस्ट लाइकली इनमें होता है जेनेटिक मटेरियल, जो DNA भी आ सकता है, RNA भी हो सकता है, और इनमें होता है प्रोटीन। मीन्स वायरसेस आर एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन, दे आर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA एंड प्रोटीन। लेकिन ऐसे वायरसेस जिनमें प्रोटीन कवर नहीं होगा, जिसको प्रोटीन ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। ऐसे वायरस जिनमें क्या नहीं होगा? कैप्सिड नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन का कवर नहीं होगा। जो प्रोटीन कवर न्यूक्लियर मटेरियल को, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को, DNA या RNA को प्रोटेक्शन करता है। मीन्स वायरॉइड में क्या लिखूंगा मैं? वायरॉइड में, शाबाश, वायरॉइड में पहला पॉइंट लिखेंगे, दीज आर वायरसेस विदाउट प्रोटीन कोट, जिसको हम बोलते हैं नाम कैप्सिड। वायरसेस विदाउट प्रोटीन कोट और कैप्सिड आर कॉल्ड वायरॉइड्स, आर कॉल्ड वायरॉइड्स। ओके, डिस्कवर किसने किया इनको? डिस्कवर्ड बाय, इनको डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर 1971 में। और इनमें क्या होता है फिर? अगर इनमें प्रोटीन कवर नहीं होता है, दे कंटेन सर्क्यूलर सिंगल स्ट्रैंडेड, इनमें होता है सर्क्यूलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, विच इज, जो RNA इनका होता है, विच इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कोई छोटे साइज का होता है, विच इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। दोज वायरस विच कंटेन ओनली RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, circular in nature, what we call these viruses are called as viroids. Viroids cause number of diseases in plants like potato spindle tuber viroid disease एक है जो करता है viroid. Anyway, तो एक और टर्म है ये viroids के बारे में, एक और टर्म है prion, यहाँ लिखूंगा मैं prion. Prions. Prions क्या है? Prions को डिस्कवर किया एक साइंस, उसका नाम है, यहाँ लिखूंगा मैं prion के बारे में, डिस्कवर्ड बाय प्रूजनर। प्रूजनर ने डिस्कवर किया, दैट्स ओके। प्रियोनिस क्या है? प्रियोनिस में होता है प्रोटीन, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। जब प्रोटीन करेगा इन्फेक्शन, इसी को हम बोलते हैं ना प्रियम,
प्रोटीनेशन इन्फेक्शियस पार्टिकल, हमारे बॉडी के अंदर भी ये प्रोटीन्स जब अनफोल्डिंग हो जाते हैं इनकरेक्ट इनकी, तो ये भी कर सकते हैं बहुत सारे डिजीज, इवन यू नो क्रूडफेल जैकब डिजीज, सीआर जैकब डिजीज, मैड काफ डिजीज, स्क्रैपी डिजीज इन शीप, या मैड काफ व्हाट वी कॉल बोवाइन स्पॉन्ज फॉर एनसेफेलोपैथी, नंबर ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय दीज प्रोटीन्स, इनकी इनकरेक्ट फोल्डिंग हो जाती है। शाबाश। एग्जाम्पल है प्रियन डिजीजेस, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रियन डिजीज आर, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रियन डिजीजेस आर, क्या क्या मैंने बोला, स्क्रैपी डिजीज इन शीप, स्क्रैपी डिजीज इन शीप, ये एक प्रियन डिजीज है, एक्चुअली प्रोटीन की वजह से होते हैं। ये प्रोटीन क्यों बन जाते हैं इन्फेक्शियस, बिकॉज इनकी फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हो जाती, इनकरेक्ट फोल्डिंग हो जाती है। स्क्रैपी डिजीज शीप में एक प्रियन डिजीज है, या इंसानों में क्रूडफेल जैकब डिजीज, सीआर जैकब डिजीज, या मैड काउ डिजीज, पागल काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, तो ये प्रियन डिजीज है। ओके। एक और टर्म क्या है, लाइकन है, यहाँ लिखूंगा मैं लाइकन, वेरी सिंपल, लाइकन्स। लाइकन मैंने बोला था आपको एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक ड्रॉबैक है फाइव क्लासिफिकेशन का, वायरस कुड नॉट बी क्लासिफाइड। दे लाइकन क्या है, लाइकन यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या है ये, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब हो गया दो ऑर्गेनिज्म्स एक साथ रहना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिज्म्स एक साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के बीच, बिटवीन एल्गी एंड फंजे, एल्गी और फंजे एक साथ आते हैं। ये एल्गी हो सकता है साइनोबैक्टीरिया भी कभी कभार, एनीवे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजे इज व्हाट वी कॉल एज लाइकन। जो इसमें एल्गी का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड पार्ट ऑफ फंजे इज नोन एज माइकोबायोंट। अलग part of lichen is known as phycobiont and fungal part is called as mycobiont। जो ये lichens है इसमें, हाँ यहाँ बोलूँगा, ये phycobiont क्या करता है, phycobiont करता है photosynthesis, बिकॉज ये ग्रीन होता है, ये करता है photosynthesis मतलब synthesis of food, और mycobiont क्या करता है, absorption of water and minerals। और लाइकन्स की खास बात है, खास खूबी है, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, जहाँ एयर पोल्यूशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा ज़्यादा एयर में, वहाँ पे लाइकन आपको नहीं मिलेगा। मीन्स लाइकन्स आर इंडिकेटर्स, वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर मीन्स दे आर हाईली सेंसिटिव, डू नॉट ग्रो, मैं लिखूंगा यहाँ पे, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, डू नॉट ग्रो इन एयर पोल्यूटेड एरियाज, एयर polluted areas, because sulfur dioxide को ये बड़े sensitive रहते हैं। Anyway, this is all about viruses, viroids, prions and lichens. These are your 2 chapters, list of important questions for living world, that means the living world and biological classification. We'll meet in next video inshallah. Thank you.